دیکھنا یہ ہے کہ اے پی سی میں آپ دعوت دیتے ہیں، پہلے فیصلہ کیجئے. دعوت سے پہلے شہباز شریف صاحب فیصلہ کیجئے، الزام لگانا ہے یا دعوت دینی ہے. فیصلہ کیجئے، سیاسی انتقام لینا ہے یا شرکت کی دعوت دینی ہے. دو چیزیں بیک وقت نہیں چل سکتی. ایف آئی آر بھی کرتی چلی جائے، جھوٹے مقدمے بھی قائم ہوتے جائیں، کردار کشی بھی ہوتی جائے، کارکنوں کو دھمکایا بھی جائے. شیخ رشید کے ساتھ جو کچھ ہوا، فواد چودھری کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کل خالد اور شبیر گجر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ایک تسلسل دکھائی دے رہا ہے. تو فیصلہ کیجیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ آج ہر پاکستانی سوچ رہا ہے. مجھے وزیر اعظم کی بے حسی پر تعجب ہوا اور افسوس بھی ہوا. خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں صف ماتم بچھی ہے، حالت سوگ میں ہے پورا صوبہ اور پوری قوم. اتنی کیجولٹیز ہو گئی، کرٹیکل کنڈیشن میں لوگ پڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت 471 کا حساب دے. بالکل حساب سے کوئی نہیں کتراتا. میں سوال کرتا ہوں شہباز شریف صاحب، آپ کے بھائی وزیر اعظم رہے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا. دہشت گردی یہ پچھلے 3 سال کا کوئی یہ تو ایک سلسلہ نہیں ہے. اس سے تو پوری قوم نبرد آزما ہو رہی ہے. پچھلے 20 سال سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، جس میں آپ کی وزارت عظمیٰ کا پیریڈ آیا، جس میں آپ کی چیف منسٹری کا پیریڈ آیا. کیا جو پنجاب کی پولیس پہ خرچ ہوا آپ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ بھی ہیں؟ کیا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی پنجاب میں آپ کی نگرانی میں، کیا اس کا حساب دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ سب سوال ہیں جو آج لوگوں کے ذہنوں میں منڈلا رہے ہیں. آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں ہماری حکومت رخصت ہوتی ہے، ایک سازش اور مداخلت کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کو رخصت کیا جاتا ہے اور ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی جاتی ہے. آئیے ایک جائزہ لیں کہ ان 9 ماہ میں دہشت گردی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. ایک انالیسس کر لیں. ہمارے حساب کے مطابق انسیڈنٹس آف ٹیررزم ہیو گون اپ، اور کچھ ماہرین کا تو خیال ہے کہ 52 سے 53% اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کا حساب ہم سے مانگتے ہیں یا آپ کو دینا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں، اور یہ کیوں ہوا؟ میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا فوکس بدل گیا، آپ کی ترجیحات میں تبدیلی آئی. قوم کی ترجیح میں دہشت گردی کا مقابلہ تھا، ہے. قوم کی ترجیحات میں معیشت کی بحالی تھی، ہے. لیکن آپ کی ترجیح نہ معیشت ہے نہ دہشت گردی ہے. آپ کا ایجنڈا ذاتی ہے، ہمارا ایجنڈا نیشنل ہے. آپ کا ایجنڈا ذاتی نیب کے کیسز سے فراغت ہے، دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہے، آئین کی پاسداری نہیں ہے، معیشت کی بحالی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پھر کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. حضور والا، آئیے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں.
جو گفت و شنید کی بات کی گئی، جو ٹاکس کی بات کی گئی، اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کچھ ان کے عناصر ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم اس بات کی گواہ ہے، کیا سب سے پہلے ٹاکس کا، ٹی ٹی پی سے ٹاکس کی آمادگی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب نے 2013 میں نہیں کیا تھا؟ یہ حقائق ہے نا۔ حقائق سے آنکھ کیسے جھٹلائی جائے، کیسے آنکھ اوجھل کی جائے؟ اور جب وہ ٹاکس ناکام ہوئی تو اس کے بعد ضرب عضب کا آغاز ہوا، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اس پہ کوئی شک نہیں، ضرب عضب کی جو کیمپین تھی وہ نہایت کامیاب تھی۔ پوری قوم نے تعاون کیا، مل کر افواج پاکستان کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، شہریوں نے، میڈیا نے، سب نے مل کے تعاون کیا، اور وہ ایک بیانیہ بنا، جس بیانیے سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو ایک کونے کے ساتھ لگایا گیا اور قوم میں ایک نیا کنسنسس ابھرا، اور اس کا نتیجہ انسیڈنٹس آف وائلنس نیچے آنے شروع ہوئے، وائلنس کم ہونی شروع ہوئی۔ الحمدللہ میں یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ 3.5 سالوں میں وہ بتدریج کم آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن 3.5 پونے 4 سال جو تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، ٹیررسٹ واقعات میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوئے، بالکل نہیں کہوں گا، نسبتاً ان میں خاطر خواہ کمی آئی۔ یہ بھی فیکٹ سے بات کر رہا ہوں، میں لفاظی سے نہیں، فیکٹ سے بات کر رہا ہوں۔ آگے چلیے، ہم دیکھتے ہیں، اور دنیا کہتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ، اور بڑا مشہور ہوا تھا وہ جملہ، کیا ہم نے افغانستان کے امن و استحکام کے لیے ہم نے OIC کا ایک اسپیشل اجلاس نہیں بلایا؟ کیا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو دعوت نہیں دی تھی؟ دنیا کے وزراء خارجہ کو نہیں بلایا تھا؟ کس لیے بلایا تھا؟ کیوں دعوت دی تھی؟ امن کے لیے، استحکام کے لیے دعوت دی تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا تھا، امن تھا، استحکام تھا، کنیکٹیوٹی تھی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، ریجنل ٹریڈ کے لیے، اور ہیومینٹی تھی۔ خدشہ تھا کہ وہاں سردی آنے والی ہے، وہاں بھوک ہوگی، اور اس بھوک کی وجہ سے ایک ایکسڈس ہوگا، ملینز ریفیوجیز ابھی بھی موجود ہیں، نئی یلغار آئے گی۔ کیا ہم نے اس کی منصوبہ بندی نہیں کی اور اس میں مدد نہیں کی؟ یا دنیا کو اویئر کرنے میں ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ فاٹا کا جو علاقہ تھا، اس کا مرجر KP کے ساتھ کرنے میں ہم نے جھنڈا بلند نہیں کیا؟ مقصد کیا تھا؟ ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا ان دوز ایریاز جو کہ دہشت گردی کی زد میں آئے ہوئے تھے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے، شہباز شریف صاحب، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم اس نے وفاقی حکومت کے لیے ایک اسپیشل وفاقی حکومت کے ذرائع سے، آمدن سے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن فار دی افیکٹڈ ایریاز کا اعلان کیا تھا؟ مجھے بات مکمل کرنے دیں، یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، سوالات بالکل میں لے لوں گا آپ کے۔ نہیں سن لیجیے، نہیں میری بات مکمل ہونے دیں پلیز، دس از مور امپورٹنٹ، دس از ویری سینسٹیو۔ اسپیشل ڈسپنسیشن کی بات کی گئی، صوبوں کو کہا گیا وہ اجڑ گئے ہیں، لوگ وہ برباد ہو گئے، انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، 20 سال کی جنگ کی لپیٹ میں رہے ہیں وہ، یار کنٹریبیوٹ کر دو، اپنے اپنے حصے سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دو۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ کسی نے آمادگی کا اظہار کیا؟ آج جو بیٹھے ہیں سندھ والے، PDM کا حصہ ہیں، سندھ کی حکومت نے ایک ٹکا دینا گوارا کیا؟ نہیں کیا۔ آج مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں آپ۔
कौम का हाफजा इतना कमजोर नहीं है किबला। आगे चलिए, क्या ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की हमारे दौर में नहीं हुई? ये भी आपके सामने है। हिंदुस्तान जो कि टेररिज्म की पुष्पनाही कर रहा था, का बैसियत वजीर खारजा इसी फॉरेन ऑफिस में मैंने डॉसियर पेश नहीं किया जिसमें कि हिंदुस्तान के अज़ाइम और उनकी हरकत को बेनकाब किया, रॉ की सरगर्मियों को बेनकाब किया। और वो डॉसियर मैंने मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से शेयर किया, अक़वाम मुत्तहिदा भिजवाया। एक एक फॉरेन मिनिस्टर को जब मैं यूएन के इजलास में गया, हाथ से दिया उनको कि देखिए, मुताला कीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है। अफगानिस्तान अपना बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये कौन करा रहा है? फंडिंग कहां से हो रही है? वेपन्स कहां से मिल रहे हैं? क्या ये हमने नहीं किया? क्या फेंसिंग का जो फैसला हुआ था बॉर्डर पे, उसको तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने फाइनेंस, सपोर्ट और एक्सपेडाइट नहीं किया? क्यों किया था? क्यों किया था? कि अनवांटेड एलिमेंट जो है उसको चेक किया जाए। ये सब चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। मैं आज ये कहना चाह रहा हूं, आज आईएमएफ के साथ बात हो रही है। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि ये मुआहदा सिरे नहीं चढ़ेगा जब तक कि ऑपोजिशन इसको इंडोर्स नहीं करेगी। ऑपोजिशन है क्या? आप सब तो हुकूमत में हो, आप सब तो हुकूमत में हो। ऑपोजिशन में तो एक जमात खड़ी है, एक आवाज है, जो आवाम की आवाज बनी हुई है, वो इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की आवाज है। बाकी सब तो हुकूमत का हिस्सा है किसी न किसी शक्ल में। लेकिन हम कहते हैं मिफ्ता इस्माइल और डार के झगड़े के जिम्मेदार हम हैं, और डार ने जो इन चंद माह में जो कुछ मईशत के साथ किया है, जो इन डिसीजन की कीमत कौम ने अदा की है, जो लैक ऑफ एन एक्शन प्लान, लैक ऑफ ए रोड मैप का खमियाजा आज पाकिस्तान का आम शहरी, मुतवस्सित तबका, तनख्वाहदार तबका, मजदूर, किसान जो कीमत अदा कर रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? आज जो आप देख रहे हैं कि जो फाका कशी है, ऑटो की लाइनें लगी हैं, ये जो नए मुआहदे करने चले हैं आप, पेट्रोल डीजल 35 रुपए आपने बढ़ाया, 18 रुपए मट्टी का तेल बढ़ाया, और आज खबर है मजीद बढ़ाने की बात हो रही है। गैस मिल रही नहीं है और मजीद टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है। बिजली सर्दियों के महीनों में लोड शेडिंग का आलम आपके सामने है, और मजीद टैरिफ बढ़ाने की 7 रुपए तक, 6-7 रुपए के दरमियान नए इजाफे की बात हो रही है। सब्सिडीज की विड्रॉल की बात हो रही है, नई टैक्सेशन की बात हो रही है, मिनी बजट की बात हो रही है, आपकी नाकामियों की दास्तानों का जिक्र हो रहा है, और आप कहें कि हम आ जाएं और एपीसी में आके अंगूठा लगा दें। करे कोई भरे कोई नहीं। ये आज हमें देखना होगा और इसका कौम को पूछना होगा। मैं आज कहता हूं, मैं बरमला कह रहा हूं, ये आज जो खून बहा है इसके जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हैं। आज जो मईशत का बिगाड़ पैदा हुआ है इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। क्या जनरल बाजवा के सामने हमारे वजीर खजाना नहीं गए थे? उन्हें नहीं कहा था कि अगर सियासी अदम इस्तेकाम आता है तो उससे मईशत को नुकसान होगा? जो हमने बड़ी मेहनत के बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की है, जो 6% ग्रोथ हासिल की है, जो रिमिटेंसेस में इजाफा हासिल किया है, जो हमारी टैक्स कलेक्शन में इंप्रूवमेंट हुई है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, ये सारा रायगान हो जाएगा, इसका मलिया मेट हो जाएगा। खुदारा सोचिए, तवज्जो दी गई? नहीं दी गई। आज खमियाजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान का शहरी भुगत रहा है।
पाकिस्तान का शहरी भुगत रहा है। इसलिए मैं कहता हूं शहबाज शरीफ साहब, ये जो सानिया पेशावर है और ये जो खून बहा है, कौम आपसे सवाल कर रही है, खून का हिसाब दो। कौम का आज आपसे मुतालबा है। अच्छा शाह साहब, ये बता दें कि आपकी बड़ी मुतअद्दिल गुफ्तगू के बाद बात ये सामने आ रही है कि पीटीआई would not be the part of ABC, ये समझ आ रही है जो, लेकिन सुबह खबर चल रही थी इस्लामाबाद से कि आप कोई 2 रुकनी डेलीगेशन बना रहे हैं, कंप्रेस्ड और आजम सवाती और शेख रशीद एबीसी में भिजवाने के लिए। देखिए देखिए सुनिए, खबरें तो भाईजान बहुत सी चलती हैं, कुछ चलती है, कुछ चलवाई जाती है। आपको नहीं आप हैं हरगिज में ये हमारी नहीं है ऐसी बात। देखिए आपके सवाल के मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए ये एक बड़ी सीरियस गुफ्तगू है, ये मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है भाईजान, ये एक बड़ी सीरियस मौजूद। सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है और मैं जवाब देने का पाबंद हूं। किबला, मेरी जो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई उस पर मुझे कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि तहरीक इंसाफ एपीसी के साथ इसमें शिरकत करने जा रही है। मैंने कल अपने सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की, जो उन्होंने लाहौर अदालत में, हाई कोर्ट में जो गुफ्तगू सुनी, उसमें मुझे कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं। जवाब वाज़ेह हो गया। शाह साहब ये फरमाएगा कि ज़राए के मुताबिक कि आला सतह पर बैकडोर राब्ता हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये कहा गया है कि आप एपीसी में जो है शिरकत करें। पीटीआई ने 3 जो है वो शराइत रखी हैं, फौरी इलेक्शन का जो है ऐलान किया जाए, साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, इंतकामी कार्रवाइयां खत्म की जाए। क्या ऐसा हुआ है? पहली बात तो ये है, मुझे उसका मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। ये मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ वक्तों में ऐसी क्या सराहियाँ की जाती हैं, बैकडोर हो गया, फलाह हो गया। मेरे इल्म में, मैं आपको ध्यानदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं लाइल्म हूँ, पर मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जवाब देता हूँ, किसी बैकडोर की मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। एक, और आपका दूसरा हिस्सा क्या था सवाल का? हाँ, एक देखिए पहली बात तो ये है, साफ शफाफ इंतखाबात हम कह रहे हैं कि हमारी दियानतदाराना राय में मुल्क को इस दलदल से निकालने का वाहिद आईनी जमहूरी रास्ता इंतखाबात है। ये हमारी राय है, कोई इत्तफाक करे ना करे। आइन के तकाजे के मुताबिक जब असेंबलियां तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम है। उस पर माहिरीन की और आपने लॉयर्स का व्यू भी सुन लिया। उस पर ताखीरी हरबे पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपके इल्म में है। साफ शफाफ इंतखाबात का तो अभी पोल खुल जाएगा ज़मीनी इंतखाबात में। 16 मार्च और 19 मार्च को कौम देख लेगी कि कितने साफ और कितने शफाफ हैं। नहीं होंगे। मैं आज कह रहा हूं, जो इनका निगरान सटा बनाया गया है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, हरगिज, और जिस किस्म की सिलेक्टिव प्लेसमेंट्स की गई हैं और जो इंस्ट्रक्शंस नीचे जानी शुरू हो गई हैं, साफ शफाफ इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे पता है जब यहां हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो क्या हुआ था। हम इंतखाब लड़ रहे थे, मैं खुद इलेक्शन का हिस्सा था, मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा था। मुझे मालूम है कि क्या हुआ था, किस तरह क्या दबाव डाला गया था, किस तरह लोगों को हमारी सफों से तोड़कर उधर शामिल किया गया था, किस तरह पैसा चला था, किस तरह डेवलपमेंट फंड्स का झांसा दिया गया था, किस तरह लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की गई थी। और ये मैं नहीं, पूरे पंजाब के 20 हलकों में ये आपको इल्म है, आप इलेक्शन लड़ रही थी एज रीजनल प्रेसिडेंट, हर जगह हुआ था। अगर ये साफ शफाफ की हमारी ख्वाहिश जरूर है, आइन का तकाजा है, लेकिन इनका इरादा नहीं है। ये फरमाएं कि अभी अबहाम है, 3-4 दिन अभी बाकी हैं, 7 तारीख में
कोई भी कंक्रीट चीज जो है वो सामने नहीं आ रही, तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी या नहीं करेगी, या कोई इस तरह के अभी इंतजार है कि दरमियान में कोई आए और फिर मामला जो है सेटल हो? या देखिए, आज क्या तारीख है? 4 7 को होनी है। मैं अर्ज कर रहा हूं, इस वक्त तक जो लेटेस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो उसमें मैं तो कोई तहरीक इंसाफ की शमूलियत का फैसला इस वक्त तक तो नहीं हुआ। इनके बाद ये बताइएगा कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि पीटीआई के दिल में तालिबान के लिए जो है सॉफ्ट कॉर्नर है। आप भी 2 बार वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो इस वक्त क्या सूरत आपके लिहाज से होनी चाहिए? कोई मुज़ाकरात होनी चाहिए या फिर कोई ऑपरेशन होना चाहिए? देखिए, हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के शहरियों के लिए, हमें अजीज ये वतन है और हमें अजीज अपने शहरी हैं, चाहे वो वर्दी में है चाहे सिविलियन कपड़ों में है। हमें उनकी खातिर मतलूब है। हमारी तरजीहात पे वो अव्वलीन तरजीह है। ठीक, उसके लिए हमने, आपने देखा कि ताउन किया, जब हमने उनका मुकाबला किया, हमारी फोर्सेस ने मुकाबला किया, तहरीक इंसाफ ने पूरा उसको बैक किया। जब हमें अमन चाहिए, उसके लिए जो भी हिकमत अमली अपनानी पड़े, हमें उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। ये फरमाइए कि आप इनके बाद आपकी तरफ हाजिर चले कर दे चले, आप ले ले, आप कर ले भाई, आप कर ले। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा ये जो निगरान सेटअप है, इसके होते हुए आपको यकीन नहीं है साफ शिफाफ इलेक्शन, जबकि आपको बैठना तो इसी हुकूमत के साथ पड़ेगा, वफाकी हुकूमत के साथ, कोई और मखलूक तो होगी नहीं जिनके साथ आप बैठ के कोई मुज़ाकरात करें और साफ शिफाफ इलेक्शन के लिए गैर जानबदार होंगे सेटअप होगा। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि आप लोग चाहते हैं कि इनके अलावा कोई और हो और हम उनसे बैठें और उनके साथ यकीन दहानी हो, उनके साथ जो सेटअप होगा वो गैर जानबदार होगा? देखिए इसी के साथ जोड़ेगी सवाल मैंने आजकल इस्लामाबाद में एक नई पार्टी फिर रही है, री इमेजिनिंग ऑफ पाकिस्तान का नाम है, जिसमें बड़े बड़े सरकटवाए लोग शामिल हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद जो मौजूदा रजीम है, इसके बाद री इमेजिनिंग ऑफ पाकिस्तान होगी। आप इसमें भी तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैं किसी की नेक ख्वाहिश पर मैं शुबा नहीं करना चाहूँगा। कोई मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है, सोचना चाहता है, तो भले सोचे, लेकिन हर चीज हम एक आइन और कायदे के पाबंद हैं, ठीक है ना, और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी कोई सेमिनार करना चाहता है, गुफ्त शुरीत करना चाहता है, हर शहरी का हक है। जी, आपका जो सवाल था वो बीच में रह गया कि किससे बात की जाए। देखिए, अर्ज ये है, जब आप फैसला कर लेते हैं ना, इदारे, इलेक्शन कमीशन इदारा है ना, पुलिस एक इदारा है ना, सिविल ब्यूरोक्रेसी एक इदारा है ना, ना इस्तेमाल हो। अगर हुकूमत उनके साथ उनको लगाती है गलत काम के लिए, वो कह दें कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, कानून ये नहीं कहता, आइन ये नहीं कहता, इखलाकियात इजाजत नहीं देती, नहीं होगा। अवाम साथ मिल जाए, और अगर कहीं ऐसा हो तो बिल्कुल सीना से पर हो जाए, खड़े हो जाए, रेजिस्ट करे, डिफाई करे, नहीं होगा, नहीं होगा। ये फरमाइए कि आपके 2 तरह के लीडर है, एक हार्डलाइनर है, एक आप जैसे मुतदे हैं। हार्डलाइनर तो बारी बारी पकड़े जा रहे हैं, आप जैसे असद उमर जैसे और परवेज खटीक जैसे लोग, क्या आप एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मुफाहमत का या मुज़ाकरात का कोई रास्ता खोल सकते हैं? जी नहीं, हम इमरान खान की पॉलिसी के पाबंद हैं। पॉलिसी सबकी एक है, अल्फाज का चुनाव है ना जी। नहीं, पकड़े जाने की बात नहीं है। मैं वही बात कर सकता हूं एक अंदाज में, आप वही बात कर सकते हैं दूसरे अंदाज में, लेकिन आपकी और मेरी पॉलिसी लाइन तो एक ही है, ठीक है ना। मैं आपको
आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी पॉलिसी पार्टी की एक है, अल्फाज का चुनाव है ना। सर एक पकड़े जा रहे हैं, एक नहीं पकड़े जा रहे हैं, ये फर्क है ना। शाहजी क्या अगर आप बंदोबस्त कर लीजिएगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हो सकता है वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। शाहजी क्या अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इमरान पाक आते हैं एपीसी में शिरकत में दावत देने के लिए, इमरान खान साहब क्या दरवाजे खुलेंगे इमरान पाक के? अगर दरवाजे पे आप हुए, अगर जमान पाक आते हैं क्या दरवाजे खुलेंगे? वर्कर्स इस्तकबाल कर लेंगे। मुश्किल सवाल। ये सवाल बड़ा काबिल गौर है, लेकिन क्या उनकी नीयतों पे कोई शुबा है आपको? कोई नीयतों पे शुबा है? उनकी इस वक्त नीयत इमरान खान को बख्शने की नहीं है। कौन की सर? जी, कौन की? इमरान खान निशाने पे हैं, कभी गिरफ्तारी के, कभी नाअहली के, और कभी बंदूक के निशाने पर है। वजीराबाद में क्या हुआ आपके सामने है ना, तो अल्लाह ने करम कर दिया। शायद अब ये खबरें गर्दिश में हैं कि दहशतगर्दी की हालिया लहर का जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ठहराया जा रहा है, दूसरी तौर पर आपके चेयरमैन को, पीपीके के वज़ीर-ए-आला को और 2-3 और अहम शख्सियात जो ताकतवर नहीं है, तो आप इन बातचीत का हिस्सा भी रहे हैं, बड़े अहम मुद्दों पर आप रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि आया वाकई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो लोगों को छोड़ने में, जो टीडीपी के लोग थे जिनको आजाद किया गया, उसमें शामिल? तहरीक इंसाफ ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक और बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत से पूछता हूं, ये जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, जो आए हैं हमारे वक्त में नहीं आए, आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब आप बताएं वो कैसे आए और कब आए और किस मुआहदे के तहत आए, वो मुआहदा दिखाएं। मेरा सवाल ये है, हमारे वक्त में नहीं आए। आखिर आप कश्मीर डे भी आ रहा है, आपके दौर में एक ख्याल हुआ था कि जनरल बाजवा ने कहा था कि मुझे को यहाँ पे आने दिया जाए और कश्मीर के इशू को पीछे रख दिया जाए, और आपकी मुशावरत से वो खान साहब ने किया। इसमें कहां तक सदाकत है? और ये भी कहा गया था कि जनरल फैज हमीद ने देखिए बात सुनिए, हम हिंदुस्तान के साथ भी हम मामूल के ताल्लुकात चाहते थे, इस पे कोई शक नहीं। हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने की हमारी ख्वाहिश है, थी और है। मुज़ाकरात से कौन कतराता रहा? हिंदुस्तान, पाकिस्तान नहीं। माहौल किसने बिगाड़ा? हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने नहीं। 5 अगस्त के इक़दामात किसने उठाए? यकतरफा, हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने नहीं। कश्मीरियों पर जो जुल्म जारी है वो मकबूजा कश्मीर में, आजाद कश्मीर में नहीं। तो इन हालात में आप जहां खून बह रहा है, यहां आप नरेंद्र मोदी के गले में माला डालेंगे? इस हुकूमत को तो आज जिक्र करते हुए यहां अटक जाती है, बात अटक जाती है। आज यहां उनको होना चाहिए, जो यहां नहीं है, उन्होंने वॉशिंगटन में गुट्टे टेके हुए हैं। थैंक यू।